सॉरी, होलसेल ट्रेड पूरा खत्म हो गया था। ओके, चलो बिफोर वी कंटिन्यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। पूरा होलसेल ट्रेड एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो फास्ट। Yes, everyone. Done? Of you? Pura? Okay, now we start with what? We start with the retail trade. Now everyone knows retail trade में क्या होगा? It's meant to satisfy the needs and wants of the customers. In the sense, अगर हम लोग को अगर अपने goods and services buy करनी है या services को avail करना है, तो we are always going to look up to whom? We are always going to look up to the retailers. Yes or no? The person undertaking retail trade is called as a retailer. Yes or no? He is the dash link. No. He is the second or the last link in the channel of distribution. बरोबर है. Second कब होता है? जब there is only wholesaler and then you have the retailer. Last कब होता है? कि जब कभी कभी wholesalers के बाद there are distributors and then they forward the goods to the retailers and ultimately the goods are being purchased by the consumers from the retailers, right? So it's the second or the last link in the channel of distribution. बरोबर है. He is purchasing goods from dash in and selling the goods to the ultimate in the required quantities of the consumer. Yes or no? अच्छा, कैपिटल और रिस्क की बात करेंगे तो दोनों रिस्क और कैपिटल होलसेलर्स के कंपैरिजन में रिटेलर का ज्यादा होता है या कम होता है? ऑलवेज लेस. बरोबर है, वो कम होता है. ओके. अच्छा, उसके अलावा
retailers, they don't invest much of capital obviously, but they have a dash variety of goods, multiple varieties, or they have large varieties of goods, but you can't expect more of. They don't deal in bulk or more quantities, or maximum quantities. They deal in limited quantities, but they have large varieties of goods. Why? उसका भी reason मैंने आपको दे दिया था, because there are multiple consumers like you and me जिनको goods and services की requirement होती है, and उसके ऊपर भी we need a lot of variety. So ultimately, it is a responsibility of the retailer to provide us with the multiple varieties so that we can satisfy our needs and wants and requirements of the goods and services. Yes or no? समझ रहा है? Everyone? कितने दिन के बाद आया? 2 लेक्चर्स नहीं था? समझा? चलो फटाफट अपन इधर के मीनिंग पार्ट से समझते हैं. ओके, क्या दिया है देखो. When the goods are sold in small quantities directly to the ultimate consumer by a wholesaler or a distributor or a dealer, they are all going to be called as retailers only. Yes or no? देखो गाइज, तुम किससे खरीद रहे हो वो मैटर करता है, भले फिर वो होलसेलर हो, डीलर हो, ट्रेडर हो, या whoever it is, that person is ultimately going to be called as retailer only. Retailer एक specific इंसान नहीं है. It's just because we call him retailer. Why? Because we are buying the goods from him ultimately. आज तुमको पता है, भले एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया because he is purchased in large quantities, but as consumers, if you go and buy from that particular wholesaler, he is not going to be called as wholesaler. He was a wholesaler when he bought the goods from the manufacturer, but because he is selling it to the consumers, he is selling it as a retailer. समझा? फिर वो डीलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है. He can be any person. Yeah, it can be any person, but because you are purchasing it from the concerned person, you call him as a retailer. समझा कि नहीं समझा? Right? The person engaged in this trade is called as a retailer. Okay, they generally operate at the local level. Okay, they are providing goods directly to the consumers at reasonable prices. बरोबर है? हाँ या ना? अब दो definition है, but we'll go with the definition of Oxford Dictionary. वो थोड़ा ज़्यादा easy है. What they say, that retail is a trade. Retail is a sale of goods. क्या? Retail is a sale of goods to the public in relatively small quantities for the use or consumption rather than for. वापस, रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स. रिटेल में अल्टीमेटली सेल ऑफ गुड्स ही होता है. ओके, टू द इन रिलेटिवली फॉर और rather than और rather than for सेल. समझा? ऑल ऑफ यू फटाफट इसके फीचर्स पढ़ते हैं. फीचर्स कुछ भी नहीं है, दे आर वेरी इजी. सबसे पहला होलसेलर, सॉरी इसमें हाँ मैंने पेज चेंज नहीं किया. एनीवेज आई गो विद द बुक. मैंने ना इसका पेज चेंज नहीं किया. विल गो विद द बुक. कुछ भी नहीं है. क्या है रिटेलर का? देखो, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन डैश एंड डैश. ऑपरेटिंग इन विच मार्केट? इन ऑब्वियसली, यस और नो. डील्स इन वाइड वेराइटी बट लिमिटेड quantities of goods. Yes or no? Investment is what? High or low? Why? Because you deal only in limited quantities. And मैंने एक और चीज आपको बताया था मालूम है. I also explained you one other thing. Many a times wholesaler क्या करता है? Retailers को goods क्रेडिट पे, उधार पे देता है. क्या? बहुत सारे टाइम उसको goods वो उधार पे देता है. भाई लेके जा. क्या? लेके जा. बिका तो पैसे देना, नहीं बिका तो गुड्स वापस दे देना. सो अगेन ऑटोमेटिकली योर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. यस और नो? आपका जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का वो कम हो जाता है ना. यस और नो? समझा? राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू द होलसेलर, बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज ना गाइस. अगर तुम लार्ज क्वांटिटीज में डील करते हो ना तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आते. यू कैन मेक गुड मनी, बट सी टू मेक गुड मनी यू हैव टू रिस्क ऑल्सो. रिटेलर रिस्क नहीं लेता ना. रिस्क लेता, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटीज में डील करता या ऐसा कुछ करता तो मे बी वुड हैव बीन इन पोजीशन टू अर्न मोर प्रॉफिट्स. बट बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग इन मच ऑफ क्वांटिटीज एंड रादर देन दैट, अबाउट दैट यू आर नॉट इवन वांटिंग टू रिस्क मनी. सो ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो बहुत कम हो जाता है. तो रिवॉर्ड्स मतलब तुम्हारे प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली होलसेलर्स के देखने जाओ तो बहुत कम होते हैं. एंड दैट्स हाउ इट इज. दैट्स हाउ द नेचर ऑफ देयर बिजनेस इज. समझा कि नहीं समझा? ऑल द 5 पक्का? A minute to you, फटाफट इतना देखो. देन विल गो विद द सर्विसेज ऑफ द रिटेलर्स. दोनों के तरफ कौन सा? होलसेलर एंड कंज्यूमर. बरोबर है? फर्स्ट,
Then everyone, easy था? Anything which was difficult to understand? ऐसा कुछ था? Easy? Okay. We go on to the next part. That is, what are the services? अभी सीधा बात है ना, वही पार्ट था. जैसे when we try to understand about wholesalers, so wholesalers की services के बारे में पढ़ा. Yes or no? वैसे retailers की services. And now we know that retailer being the link between dash and dash. कौन है? Wholesaler and consumer. तो दोनों की तरफ उसका direct responsibility and direct services हो जाती है. हाँ या ना? So first we'll try and understand about the services that he's providing to the wholesalers. Yes, what is he doing? He's trying to connect the wholesalers to the consumers directly. Na? Obviously, there is no direct connection between the wholesalers and consumers. It is always going to be via the retailers. Yes or no? See, why is the importance of retailers so much? आज wholesalers ने क्या किया है? They have purchased the goods in large quantities. हाँ या ना? अच्छी खासी quantities में goods खरीद लिया, लेकिन problem क्या है? They have to depend on the consumers to purchase those goods. Otherwise, it is all going to be a loss. So now if the wholesaler is wanting to connect to the consumers, he cannot have a direct link with them. So he'll have to depend a lot on the efficiency of the retailers. So the connecting link between the wholesalers and consumers is only and only going to be possible with the support of retailers. Yes or no, the efficiencies of the retailers. Second, it is also helping in the distribution of goods. देखो वही लिखा है. Distribution करने के लिए भी ये retailers का services बहुत important है wholesalers को. You know, especially when it comes to those perishable goods. First and foremost, guys, try and understand perishable goods का problem क्या है? जल्दी खराब हो जाते हैं. Yes or no? जैसे छुट्टी मारने के बाद तुरंत तुम्हारी तबीयत, या सुबह 7 बजे का लेक्चर देख के तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है. हाँ या ना? तुरंत. Your health is as perishable as some of the dairy products or some of the other perishable products. हाँ या ना? सुबह देखते हैं आँख खुलती नहीं यार, मम्मी को बोल देता हूँ यार कंटाला आ रहा है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, जुकाम हो रहा है. सबसे बेस्ट सर दुख रहा है ना? How many of you have faked it? Trust me. These are hands. और कौन है इधर? थोड़े जन तो हाथ ऊपर कर लो. और घर वालों ने बिलीव भी किया बिकॉज ऑफ योर एकदम नेचुरल एक्टिंग. ये है ना? ये टैलेंट तुम बताओ ना. मैंने एक दो बार ट्राई किया था. व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, मैंने मम्मी को बोला मम्मा यार बहुत सर दुख रहा है, मम्मा यार बैक पेन कर रहे हो. तो सबके बस की बात नहीं है बेटा. बस नहीं, तुम तो पूरा टेम्पो लेके चल रहे हो. बस की बात नहीं है कि नहीं? कोई को वाहियात है ना, एक जन ने शायरी मारा था, तो वो शायरी मेरे को याद आ जाती थी. मम्मी ने ऐसे बोलती थी, सर दुख रहा है ना, दवाई खा ले, ये हो रहा है ना, रब बाम और समथिंग. तो एक वाहियात शायरी आई थी ना, किसी ने तो बोली थी, मतलब फालतू वाली. तो तेरे इश्क में इतना दर्द हो गया बलिए, तेरे इश्क में इतना दर्द हो गया बलिए, बोलता मुंह लगाइए और काम पे चलिए. सेम लगा, चल ये बाम लगा ले, ये मुंह लगा ले, निकल. नेवर वर्क विथ मी, बट यू गाइस हैव मेड इट वर्क, राइट? कितने नहीं ऑनेस्टली मैं इसके लिए पूछा था, जस्ट रेज योर हैंड्स जिन्होंने क्या बोलते हैं सक्सेसफुली एक किया है. एक ये था, एक ये थी, एक ये थी, एक ये था, और वन मोर. ओके, शक्ल सूरत से कितनी भोली है तू. काम और कांड तेरे एकदम ऊपर है. मतलब you knew that day after tomorrow you're not wanting to go to school, college, class, whatever it is. मतलब you lied to all your people also in the school and everything. Now a running nose and everything. And mama believed. ठीक है, अच्छी बात है, ये सब तुमने बता दिया ना वाला. I know what to talk to them and how much they need to believe you. Obviously. कभी गया था बेटा? बहुत पहले, मतलब परसों. They are no so naive. अभी इन लोग कुछ बोल नहीं रहे बिकॉज अभी भी किया रहेगा, बोलेंगे नहीं ना, फंस जाएंगे. Can't help it, guys. But yeah, perishability, guys. There are a lot of goods which are perishable in nature. Yes or no? Dairy products, fruits, vegetables, flowers. Yes or no? Meat, eggs, सब poultry, basically. अब इनके efficient distribution के लिए तो the services of retailers are very very highly recommended and they are very very dependent on the services of retailers. Yes or no?
आज देखो पता है few products like especially milk and dairy products, वो तो day in day out पता है उसका transmission होता है from one place to another place, from the say the dairy farms to the dairy product sellers, और इनकी efficiency तुमको इसके लिए पता है, I don't know whether you are aware of this or not, कुछ भी हो जाए, कितना भी भारत बंद आ जाए, या कितना भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कितना भी कोई प्रोटेस्ट हो जाए, मिल्क को कोई बैन नहीं कर सकता, मिल्क के सेल को कोई रोक नहीं सकता, पता है कि नहीं पता है? कितना भी भारत बंद कर दो, दूध का दुकान हो और दूसरा फार्मेसी, ये दोनों को कोई टच नहीं कर सकता, इट्स अ रूल। कोविड भी था तो कौन सी फार्मेसी बंद थी, कौन सा डेयरी वाला बंद था, दे बोथ वर ओपन, एंड उनके ऊपर पता है कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होता, बिकॉज द नीड ऑफ मिल्क एंड मेडिसिन इज ऑलवेज गोइंग टू कम अप एनी टाइम। इसके लिए तो कितने फार्मेसी वाले 24/7 चालू रहते हैं, कितने डेयरी वाले सुबह 3 बजे 4 बजे चालू कर देते हैं, दे हैव नो रेस्ट्रिक्शंस इन रिगार्ड्स टू टाइम। बाकी सब पे तो क्या, यू हैव टू टेक परमिशन एंड एवरीथिंग, इनको कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, एंड दीस आर द ओनली स्टोर्स व्हिच आर ओपन ऑल 365 डेज। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू अबाउट मेडिसिन? तो ठीक है, फार्मेसी सबको पता है, मिल्क का कितने जन को नहीं पता था, उनके ऊपर कोई भारत बंद नहीं लगता, नेवर एवर। एंड यू नो व्हाई? मिल्क, आई मीन मेडिसिन का तो फिर भी तुम समझ सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकता है, व्हाई मिल्क? स्पॉइल हो जाएगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, चाय के लिए चाहिए, बरोबर है यार, सर चाय नहीं चलेगी, चाय नहीं आएगी तो दिमाग नहीं चलेगा, नहीं भाई बिना दूध के चाय पी, भाई ब्रेड के लिए दूध लगता है? नहीं लगता बेटा, दूध दूध के लिए होता है, दूध और ब्रेड का कोई लेवा देवा नहीं है। एनीवन? चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को दूध लगता है। सेकेंड, पेट एनिमल्स, दे डोंट हैव मच ऑफ अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मिल्क, तो उसके लिए तो क्या, बच्चों के लिए तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, इसको ब्रेड चाहिए, इसको क्या करना था, चाय पीना था, वाह रे वाह, बच्चों का बोले हमको चाय दो सर, बच्चे तुमर मेरे को चाय चाहिए। एनीवेज, यू गेट इट? So for the distribution of such kind of perishable goods, especially, the services of retailers are very important for the wholesalers because they can't stock the goods for a longer duration. Yes or no? For the consumers like us, we need our part of satisfaction of goods and services with the help of retailers. तीसरा, one of the other important point is marketing. देखो, last lecture में अपन ने क्या पढ़ा था कि actual में देखने दो तो it is the responsibility of the manufacturers, but a lot of marketing services or functions are undertaken by. But now there is also some bit of responsibility, or I won't say it is a responsibility on them, they have taken it maybe voluntarily. ठीक है, चलेगा. As retailers, we'll also support the wholesalers in undertaking certain forms of marketing services या marketing functions like promotion, advertisement. They may take the responsibility of distribution themselves. Like उन लोग खुद जाएंगे wholesaler के पास और खुद माल लेके आएंगे. छोटी क्वांटिटी तो छोटी क्वांटिटी, they may want to store the goods with themselves because they feel the distance is way too much, so retailers अपने पास goods लेके आएंगे and they will store it. ज्यादातर तो उन लोग क्या करते हैं मालूम है, they are more into what, the advertisement and publicity part. ठीक है, थोड़ा बहुत publicity वगैरह करेंगे and we'll try to create the demand for the products, because see, we may not be influenced by the publicity and promotion undertaken by the wholesalers, but we may be highly influenced by the publicity and promotion undertaken by the retailers. Like आप नॉर्मल चल रहे हो, एक मैनिक्विन पे एक इंसान ने एक ड्रेस, एक शर्ट, एक पैंट रख दिया तो यू मे बी इंटरेस्टेड, किसी ने ऐसा दुकान के उधर लिख दिया रहेगा साले, सेल, ठीक है, I always read it as साले, I don't know for what reasons, मतलब बोलता है मैं साले आ इधर, मैं बना रहा हूँ उल्लू, बोलते हो सेल 50%, ऑलरेडी 200% बढ़ा के बोलते फिर 50%, I don't know for what reasons. Anyways, so these are all the gimmicks that they undertake. तो वो सारे गिमिक्स आप निकाल दो, ठीक है, जाने दो, अल्टीमेटली डिमांड तो करेगा ना, वो क्रिएट तो करेगा ना डिमांड, yes or no? So many of the marketing services are undertaken by retailers on behalf of the wholesalers. Actually मैं बोलूँ wholesaler का भी responsibility नहीं है, actually तो responsibility manufacturer की होनी चाहिए, but the wholesaler took that responsibility on himself. But if the wholesaler is not doing it, up to a limited extent, he may depend on the retailers for undertaking certain set of marketing functions on his behalf, so that the goods can ultimately reach the consumer. See, वही लिखा है, right? Sometimes the wholesalers handle transportation, addresses, shortages and ये वो, तो उस हिसाब से retailers भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, wholesalers नहीं कर पाते हैं तो
समझा? राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. क्या प्रोवाइड, ये पॉइंट मेरे को शायद बोलने का जरूरत नहीं है. हाँ या ना? मार्केट में कौन होता है अल्टीमेटली? कंज्यूमर्स एंड, और उसी मार्केट की इंफॉर्मेशन ऊपर कौन पहुंचाता है? होलसेलर्स को. Obviously, the efficient services of retailers are making it possible for the wholesalers to get the market information and the conditions in the market from the retailers, and accordingly, the wholesalers will be able to provide that information to the manufacturers so that they can make the changes and developments on the product based on the the market and market conditions. Ha ya na? Market information from the market, from the retailers to the wholesalers. Samjha? I mean, to the manufacturers via wholesalers, right? See, attract the customers also. मैंने वही बोला ना, through personalized salesmanship and those window displays and those promotional activities undertaken by the retailers are helping the wholesalers in creating the demand for the products. Yes or no? देखो, एक exception मैंने आपको बताया था. Retailers may not want to do that, specifically with your part of goods. Retailer deals in multiple varieties. उसमें तुम्हारा particular specific जो type of goods है, उसके लिए मैं ही क्यों मेहनत करूं? Because practically मैंने आपको समझाया था. For retailers, if he sells product A, B, C, D, E से लेके किधर तक भी हो, he is going to earn profit in all of them. He will not want to push only one particular product or two particular products coming from one particular wholesaler. उसको सब प्रोडक्ट में अपना फायदा है, तो वो इतनी मेहनत करेगा ही नहीं. If still he is doing it persistently for you, means he is giving you that support, na, as wholesalers to promote the products and ultimately resulting in the sales of the product. Yes or no? Wholesalers have to be thankful for that, right? So they attract the customers through personalized salesmanship and window display. And last but not the least, they are the people who are creating demand. Yes or no? कैसे मालूम है? They understand the consumers. They understand the consumers' preferences and everything. And based on that, they will provide that information to the wholesaler, and the wholesaler accordingly will only distribute those goods which can be matching the requirements and the expectations of the customers. Yes or no? अरे मार्केट में ज्यादा चल रहा है आज, कस्टमर्स लोग ये डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो चुका है. यू ओनली डील विद दिस प्रोडक्ट्स. सो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है, द रिटेलर्स आर प्रोवाइडिंग इट टू द होलसेलर्स, एंड अकॉर्डिंग द होलसेलर्स आर मेकिंग दोस चेंजेस. समझा कि नहीं समझा? राइट? पक्का? नाउ what are the services to the customers? Now, this answer kind of is an important because many of the colleges do ask this question. Okay, but this answer becomes one of the easier answers to understand. Why? Because ultimately you and me are consumers, and we know that there are a lot of services that we are getting from the retailers. जैसे अपने लिए they are keeping a ready stock of goods. हाँ या ना? मतलब अपन कभी भी जाते हैं, कोई भी रिटेलर के पास जाते हैं, कैसी भी वैरायटी चाहिए, कितनी भी क्वांटिटी, अपनी कोई वैरायटी, आई मीन अपनी कोई लार्ज क्वांटिटी में डिमांड नहीं होती, बट वट एवर आर एक्सपेक्टेशंस एंड आर डिमांड्स आर इन दोस सैटिस्फाइड विद द सपोर्ट ऑफ रिटेलर्स. They have kept a good stock of goods with themselves. I'm not saying that they are dealing in huge stock of goods. जितना भी stock of goods है, at least अपने expectations and अपने requirements के हिसाब से उन लोग satisfy करते. Plus, they also keep a large variety of goods. बरोबर है? They are dealing in large varieties. So yeah, what they are doing is regular supply of those goods, and they're acting as a link. Okay. Next, most of the retailers have conveniently set up their stores for us in the very vicinity of the areas where we reside. हाँ या ना? अपने को इधर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सिंपल एग्जांपल मैं बोलूंगा, यार अभी हो गया मेरा पानी वानी खत्म हो गया, कैन एनीवन गेट मी अ बॉटल ऑफ पैक्ड वाटर? तुम नीचे उतरोगे, यू गो लेफ्ट, यू विल फाइंड अ स्टोर, यू गो स्ट्रेट, यू विल सी नागरिक, ऑन योर राइट यू हैव हरिओम फ्रॉम द गेट. तीनों जगह पे मिल रहा है. नॉट द क्लोजेस्ट टू यू वुड बी हरिओम. एंड अगर तुमको एक सेकंड भी लगा ना हरिओम में थोड़ा भीड़ ज्यादा है बिल्डिंग में, ये वो डायरेक्टली गेट आउट, यू विल गो सामने नागरिक में ले लोगे. नागरिक के बाजू दो दुकान छोड़ के भी एक दुकान है जहां पे पानी का बॉटल मिल जाएगा. इतना कन्वीनियंट है. यू डोंट हैव टू गो फार लैंड्स लेने के लिए, कुछ बाय करने के लिए. दे हैव मेड श्योर दैट दे हैव सेट अप देयर स्टोर्स very near to our vicinity, and they're trying to provide us with maximum convenience. And also convenience इतना अच्छा है कि कितने सारी जगहों पे some of the stores are like straight down your residential areas. किसी चीज के लिए शायद थोड़ा दूर जाना पड़ता है. Like मम्मा में से कि मैं मार्केट जा रही हूँ, and market maybe would 5-10 minutes walk. Some of them and some of the stores are set up in the same building. हाँ या ना? मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहां पे एक बंदे ने ना, ऐसा वो मालूम है, बागड़ा रहता है. उस बंदे ने बागड़े से चालू किया. Now, if you see that person
is selling so many variety of other different things. मतलब मैं बताऊं, डिमांड में उतने टाइप्स ऑफ ब्रेड नहीं है जितने उसके पास है. ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, पिज्जा बेस, वो बर्गर वाले ब्रेड, सब गार्लिक ब्रेड, ब्ला ब्ला ब्ला, होल व्हीट ब्रेड एंड दिस ब्रेड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कर्ड, स्नैक्स, नारियल पानी, एग्स, बहुत सारी चीजें जाने दो भाई. वो पागड़ा है. क्वांटिटी और वैरायटी देखने को दुकान वाला शर्म जाए. यार ये इसके पास ज्यादा है. कभी कभी मेरे को लगता है आजू बाजू दुकान वाले इसके पास लेके थोड़ा देना. एंड बंदा इतना ग्रेट है, उसको फोन करो लिफ्ट में डाल के भी देता है. तो ओनली एक्सपेक्टेशन है कि इस आप जो भी है पैसा पहले पे कर दो. वी सेंड ए जी पे और सेव्ड है, लिफ्ट में डाल के देता है बंदा. इतना कन्वीनियंस है. हाँ, द ओनली एफर्ट दैट यू नीड टू टेक इज यू हैव टू कॉल एंड यू हैव टू पे. लिफ्ट में डाल देगा, बोलेगा भाभी भेज दिया है, पिक इट अप. सिक्योरिटी वाले भी अच्छे से जानते हैं भाई. एक दो बार ऐसा भी हुआ है, उससे स्टिकर डाला है ये इसका ये इसका इसका. एक ही बार लिफ्ट में 3 जन का माल डाल दिया था. मैं भी सोचा बिल्डिंग वाले में हम अकेले तो नहीं है, डिपेंडेंसी इज लार्जर. That's their convenience, guys. Yes or no? Acha, you will be able to relate to this point. They also provide us with what? They also provide us with credit facilities. समझ रहे हो credit facilities मतलब? कितने जन ने सच बताना ऐसा किया है? कभी स्कूल जाने के पहले या क्लास जाने के पहले, and you have been hungry or you wanted something and you have been to a retailer, to an general store, कुछ उठा लिया रहेगा, मम्मी पैसा शाम को देके जाएगी. हाँ, मंगल बाद में देके जाता हूँ. कितने जन ने किया? बेशरम तो कुछ अच्छा काम किया लाइफ में. सभी गलत काम किए जा रहे हैं. एक ये और एक ये, दोनों ने लाइफ में सीधे काम नहीं किए. तूने भी मतलब जेन्युइनली ऐसा कि कुछ चाहिए था और लिया कि विदाउट द इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स, एंड बाद में पेरेंट्स बोले आपकी बेटी लेके गई थी, हाँ ठीक है दे दो, फिर घर पे जाके बैंड बजी हो. नहीं, घर पे बोल जाते, घर वालों ने बोला बेटा ले ले, मम्मा पैसे नहीं है, उसको बोल मैं बाद में देके जाऊंगी. या कभी कोई मम्मा ही फोन करते हैं, माय डॉटर विल कम, माय सन विल कम, उसको दे देना. मैं हाँ भाभी कोई प्रॉब्लम नहीं. हुआ है ना? यस और नो? हमारे ग्रुप में एक नालायक था. मतलब हमारे ग्रुप में एक बंदा था जिसका एक पर्टिकुलर जनरल स्टोर में उसके माँ बाप का पूरा हिसाब किताब चलता है. फॉर मंथ फुल मंथ का ग्रोसरी तुम लेके जाओ, कुछ भी करो, एंड ऑफ द मंथ वो बिल देके जाता है तो उसका बाप पैसे भरता था. हमारे इसमें एक नालायक दोस्त. So this person whom we are talking about is जिसके डैड का अकाउंट है, उसका नाम था पार्थ. तू भी ऐसे ही है? मतलब नालायक वाला नहीं, ये बंदा ये था कि जिसके बाप का अकाउंट चलता था. एंड देन देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड एज माइकल. माइकल की स्टोरीज है ना, ओवर टाइम में आपको बताऊंगा. वो है ना हमारे लिए का लेजेंडरी बंदा है. यू नो माइकल? दिस आई एम ट्राइंग टू टेल यू द स्टोरी वेयर यू आर नॉट इवन प्लान्ड. ठीक है, तो माइकल लेजेंड जाएगा. हाँ पार क्या क्या लेने का बोल, तो कुछ नहीं है, फोन का औकात था नहीं, फिर भी ऐसा शाइनिंग. हाँ पार, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ मैं पहुंच गया हूं, ले लेता हूं. अंकल 2 डेयरी मिल्क, एक स्प्राइट, 2 लेस, 1-2 कुरकुरे. और वो इतना स्टैंडर्ड रखता था ना कि 100-150 रुपए ज्यादा दिखेंगे नहीं. अच्छा डेयरी मिल्क भी मतलब अभी तुमको 10 वाली इतनी मिलती, हमारे टाइम में 10 वाली इतनी होती थी, वो 2. एंड उसका बैग है ना फुल होता था. तो हमको हमेशा क्या लगता था, भाई ये बंदा तो अमीर नहीं, अमीर से ज्यादा दिलदार है. पता चला दिलदार पार्थ का बाप है. अभी पकड़ा कब गया? सो जब ऑब्वियसली पार्थ के बाप को मालूम है बिल तो ज्यादा ही लंबा हो रहा है, ज्यादा ही कुछ चीजें फालतू लिखता था ना, जो ओनर रहेगा स्टोर का लिखेगा ना 2 डेयरी मिल्क के, वो तो इतनी चॉकलेट खाता. पापा मैं तो खाता ही नहीं हूँ, आज के बाद तेरा ये बंद, आज के बाद वो बंद. अच्छा दुकान वाले को बोल भी दे रहेगा, अभी कोई आएगा ना तो मेरे को फोन करना. कर गया रहेगा, रुको तो आपको फोन किया सर आपने भेजा है, उसका भाग के आया. ये बंदा स्कूल के यूनिफॉर्म में, क्या अंकल, मुंह इतना छोटा हो गया उसका. तूने भी सेम किया है? आर यू पार्थ और माइकल? उसका मुंह छोटा हो गया. और बाद में बाप ने उसका माइकल के साथ दोस्ती, एक्चुअली हमारे सब घर वालों ने बोला था माइकल के साथ दोस्ती मत रखो, ही इज इंजरियस.
है ना, सिर्फ अपने माँ बाप बोलते इसके साथ तो दूर ही रहो. दैट वाज द पर्सन वुड बी एट द पीक. वो सबसे ऊपर रहेगा जिससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे ही कांड किए. एक बार टिकट लेस ट्रैवलिंग कर रहा था, आए हम लोग सब थाना से वापस आ रहे थे, उसको बोला तो वो नहीं मेरा तो पास हो रहता था बंदा कल्याण, मेरे पास पास है. जिंदगी में उसने पास देखा नहीं रहे. आए मुलू स्टेशन पे, तो हम लोग को क्या वो टाइम में देखो पुलिस पुलिस क्या ये तुम्हारा टीसी वाला पकड़ना तुम्हारे लिए प्राइड है, क्योंकि तुम्हारे पास टिकट है, सामने से जाओगे. हम गए, ये भाई साहब पीछे निकल रहे, किधर वो हमसे अलूफ हो गया. लाइक हम 2-3 जन थे आगे चले गए, वो हमसे अलूफ, मतलब मैं इसको जानता नहीं, मेरे को जानता नहीं, ऐसा पकड़ा. तो हमारे अंदर से ना थोड़ा हंसी छूटने वाला था ये. वो उसको पकड़ा, टिकट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में. क्या हो गया? मेरी मम्मी गिर गई. भाई खड़े खड़े बंदे ने बोला किधर? थाना और मुलुंड के बीच में, मैं जा रहा हूँ पापा को फोन करने पीसीओ पे. इतना नेचुरल एक्टिंग. तो लोग बोलते बताओ किधर है, चलो 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 करके वो आगे थोड़ा फास्ट चलने लग गया. और इन लोग भी गए रहेंगे देखने के लिए, भाई इमरजेंसी है कुछ, तो दे वुड बी लाइक हम लोग जाके बुलाते और बोलते ना स्टेशन मास्टर वो स्ट्रेचर लेके आओ. ये सब भाई साहब उधर चले गए. ये भाई साहब हम लोग स्टेशन मतलब ये वाला एंट्रेंस, ये टुवर्ड्स थाने गया, पीछे वाले एंट्रेंस से बाहर भाग गया. अलग लीग का बंदा है वो. एंड उसके दिमाग में सब चलता भी है. बोलते ना यू हैव टू हैव द रिसोर्सेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. एंड अगर उसको उसने सोच लिया था अगर कभी ऐसा मैं पकड़ा गया तो आई हैव टू बी वेरी नेचुरल, अंदर से निकल गया उसके कुछ भी. जैसे एज एन वी प्रोग्रेस तुम इसकी लेजेंडरी स्टोरी सुनोगे एंड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई आवर पेरेंट्स वर लाइक इससे दूर रहो. इतना बैठे बैठे माँ को मार देता, वो ट्रेन से गिरा विरा देता है. भाई पढ़ाई में जिंदगी में उसने पढ़ाई नहीं की है, नेवर एवर. 11 में 46%, 12 में 71%. कॉपी. और उसने प्राउडली बोला था मैंने कॉपी की है, प्राउडली. और हर एग्जाम के बाद अपना तो डिस्कशन होगा ना, बोलेगा आज मैं 3 चीट लगेगा था भाई, 2 चीट का मेरा तू देखा वो दोनों आंसर आया था. शर्म कर ले पे, कभी पकड़ा जाएगा तो. वो तो आज तक पकड़ा है क्या? दैट बंदा इज राइट नाउ वर्किंग इन अमेजॉन. खुद का टेस्ला है उसके पास यूएस में. हाँ अब मैं मम्मा पापा को बोलता हूँ इससे दूर रहना था, कुछ ज्यादा ही दूर हो गया. ही हैज हिज ओन टेस्ला, अमेजॉन में काम करता हूँ. वेरी रिच. उसका मस्त एक फेसिंग खुद का बंगलो है उसका. तो फोटोज देखते हम लोग बहुत बुरा लगता है. अभी मेरे को एक्चुअल में नहीं पता है सच है कि झूठ है, तो जितना देखा फोटोज में देखा है. नहीं 1-2 बार आया था मिला था तो एक्चुअली समझ में आता है ना द पर्सन एकदम चेंज्ड, पर्सनालिटी चेंज हो गया. यार हम भी थोड़ा ऐसा कर लेते. लाइक आई डोंट नो, मे बी 12th के बाद है ना वो बंदा बहुत सीरियस हो गया था. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस. घर वाले ने समझ लिया रहेगा भाई इसको थोड़ा बजाओ बजाओ कान के नीचे. देख लो तुमने अगर सीरियस नहीं हो रहे हो तो. Any which ways, yeah. So great facilities, we have always got it. Yes or no? Acha, one of the other services that you have again got it. Now you understand this personally. They give you home delivery as well. कितने ऐसा होता है मम्मा बहुत सारा सामान लिखा के जाती है, हाँ घर में पहुंचा देना, और बंदा अच्छे से बोलता है सामने हाँ पहुंचा देंगे. आई थिंक कोविड के टाइम में इनकी होम डिलीवरी सर्विस वाज एट द पीक, क्योंकि ऑब्वियसली यू डिडंट वांट टू कम इन कॉन्टैक्ट्स. सोशल डिस्टेंसिंग वाला प्रॉब्लम था. तो लोग बोलते थे या तो फोन ऑर्डर जो भी देना फोन पे दे दो या पुट अ व्हाट्सएप एंड वेट अंटिल यू गेट द डबल टिक, मतलब ब्लू टिक दिखेगा. और बाद में वो क्या करता था, स्कैनर भेजता था, बिल भेजता था, आप स्कैन कर दो, तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे छोड़ के जाता था. इतना एफिशिएंसी था. And now that has continued. So many retailers have still continued that set of services to provide to their regular customers. See, this services is not for those customers who are one-time customers. You'll have to become regular customers to them to get that great facilities and home delivery. Some of them have mentioned पहले से कि हम home delivery देते हैं, but not all of them. So specifically those general stores and all will not believe in home delivery. It's only then you have become regular with them and you have been buying regularly from them. तब जाके वो आपको देते हैं regular services में home delivery. अच्छा, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपने को कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर्स ही ना. कितने टाइम में बताओ उनकी इन्फॉर्मेशन या उनका सजेशंस एक्चुअली काम कर जाता है. Is that happened with you guys कि कभी तुमको ऐसा रेगुलर स्टोर में गए और कुछ तुमने खरीदना चाहा, क्या कभी कुछ तुमने पूछा तो दैट बंदा वुड हैव बीन मोर सजेस्टिव एंड ही वुड हैव गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बेटा ये मतलब ये वाला ले ज्यादा अच्छा है,
भले वो दिखने में भले अच्छा है लेकिन दिस इज मोर ड्यूरेबल हुआ है। कभी तुम बोला रहेगा अलग कोई वैरायटी कलर है तो बोलता हाँ देखिए तेरे पे ज्यादा सूट करेगा, ये लेके जा, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा चल रहा है। दे हैव गिवन यू सम सजेशंस एंड आइडियाज, बेस्ड ऑन दैट वी कैन कॉल इट एज इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स वी आर लैकिंग इन्फॉर्मेशन, हमको पता ही नहीं तो पूरा आपको डेमो वेमो देता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है ना, एंड अगेन देन यू मेक योर चॉइस अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट, हाँ या ना, सुनो। अच्छा, one of the other additional services, this is very important again, which is called as what? After sales services. Who commits you with the after sales services? Now first and foremost you may be confused at what are after sales services. क्यों? after sales services में तुम्हारा वारंटी, गारंटी, इंस्टॉलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब होता है ना. Who commits you? It's always the retailer. सर लेके जाओ, मेरा बंदा आ जाएगा, लगा के जाएगा. सर लेके जाओ, कल आएगा बंदा, पूरा आपको डेमो वेमो दे देगा. सर लेके जाओ भरोसे पे, कुछ होगा तो मैं चेंज करके देगा, एक्सचेंज करके देगा. मैं बैठा है ना. Such kind of warranties and guarantees are committed to us by them only. And it's always on their word that we have decided to buy or not to buy some things. Yes or no? वो खुद बोलते हैं देखो इसमें 1 साल का है, इसमें 3 साल का है. कंपनी में जाने का जरूरत नहीं, मेरे पास लेके आना, मैं करके देगा. हाँ या ना, समझ रहे हो? रोमा वाला करता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है ना, सो दे डोंट आस्क यू टू गो टू द सर्विस सेंटर. दे विल लाइक आप मेरे को 99 रुपीज पे करो, बड़े से बड़ा टीवी लो या छोटे से छोटा हेडफोन लो, मैं आपको एक्सचेंज करके दूंगा. खाली 99 रुपीज लेते हैं उन लोग. ये बताया नहीं है कभी उन लोग ने, बट 99 रुपीज वाला मेरे को पता है कि आप बड़े से बड़ा टीवी लो, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, यू डोंट हैव टू गो योरसेल्फ टू द सर्विस सेंटर. दे विल सी, दे विल चेक द प्रोडक्ट, अगर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कुछ इशू है, खुद ही उन लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवा लेंगे और आपको नया एक्सचेंज भी करके दे देंगे. एंड दे विल देन व्हाटएवर डील विद द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी है, मैन्युफैक्चरर, जो भी. समझा एवरीवन? So yeah, the post sale services or after sale services are also provided by the retailers to the customers. Yes or no? Right? And last but not the least, क्या? They provide us with what? They provide us with so many distinct and different varieties of goods. हाँ या ना? अपने को नीड है ना वेराइटीज का, सो अपने को वेराइटी ऑफ गुड्स कौन प्रोवाइड करता है? इट्स ऑलवेज द रिटेलर्स, बिकॉज ही विल स्टॉक दोस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स टू ट्राई एंड मैक्सिमाइज आवर सैटिस्फैक्शन बाय प्रोवाइडिंग अस विद so many options. Yes or no? If they would have dealt in only one or few products, we may not have been interested in buying, because अपना नीड ही वेराइटी का होता है. हाँ या ना? ऑलवेज कभी भी दुकान में जाते कुछ और कलर दिखाओ, कुछ और डिजाइन दिखाओ, कोई और अलग पैटर्न दिखाओ, कोई और अलग साइज दिखाओ. दिस इज आर कांस्टेंट नैगिंग एंड डिमांड्स फ्रॉम द रिटेलर्स, सो दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर स्टोरिंग मल्टीपल वेराइटीज ऑफ गुड्स. समझा कि नहीं समझा एवरीवन? यस और नो? देखो, और ये दोनों पॉइंट्स हो गए अपने इन्फॉर्मेशन और आफ्टर सेल सर्विसेज का, राइट? दोनों आंसर समझा कि नहीं समझा? सर्विसेज टू होलसेलर्स एंड सर्विसेज टू, और कंज्यूमर्स वाला आंसर थोड़ा इंपॉर्टेंट है. दे कैन आस्क दिस आंसर एज 4 मार्क आंसर. ओके, आई विल गिव यू 2 to 3 minutes, फटाफट दोनों आंसर पढ़ लो फास्ट. फास्ट.
डन, फास्ट, आराम से. अच्छा, मेरे को बात बताओ, व्हाट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ नोट्स दैट यू हैड रिटन? होलसेल ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रो और ये सब लिख लिया था. सो डायरेक्टली वी जंप टू रिटेल. इतना इतना और खाली फर्स्ट डेफिनेशन लिख लो ना फास्ट. ओनली द फर्स्ट वन, डोंट नीड टू राइट द सेकंड वन. फास्ट एवरीवन.
Any updation from any colleges about your exams और आया है? 2-3 दिन से तो छुट्टी है. बोल. ऑब्वियसली सितंबर में होगा क्योंकि आज 28th है डियर और कल 27th. कौन सा कॉलेज है? सोमया कौन सा? आर्ट्स एंड कॉमर्स. 27th. बाप रे. और पोर्शन कुछ बोला है? फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट सेकंड आधा? और किसी को पता चला? सस्ते नशे ये पढ़ा लिया है, ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया, अभी 2 बार रिपीट किया. कौन सा माल फूकता है बे? कौन सा? और कोई कॉलेज का नहीं है ना? उधर वाला कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो चालू है अभी. केलकर 23rd. पोर्शन पेज 31 मतलब तुम्हारा चेन स्टोर 1 प्राइस स्टोर तक. तो लास्ट टॉपिक थे कौन सा? मॉल्स. कॉलेज जाना चाहिए बेटा. तो सब पता चल जाता है. एमसीसी पोर्शन फर्स्ट एंड सेकंड. ओके गुड. एंड ऑफ सितंबर में इन लोग ने अगर यूनिट्स रखा तो आई एम डेड श्योर कि इन लोग सेमेस्टर दिवाली के बाद ही रखेंगे, बिकॉज एंड ऑफ सितंबर सेकंड को तो नवरात्रि है. बेटा मार्क्स देखे ना, आप ऐसी ऐसी जगह पे डांडिया मारते हैं ना, जो भी हो. एंड 17th 18th से तो तुम्हारा दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक दे विल हैव टाइम. सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कंडक्ट देयर एग्जाम्स, आई मीन सेमेस्टर एग्जाम्स इन नवंबर. हाँ, नवंबर 2nd 3rd से लोग स्टार्ट कर देंगे. सस्ते साथ में. हुआ गाइस. चलो अभी गोइंग ऑन. अब ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, चैप्टर का. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच वाज अबाउट होलसेल एंड रिटेल. Now the second part of the chapter is about what? The classification of retail trade. Now when I say classification of retail trade, मतलब ये retail trade को classify किया into 2 major things. अगर आप वो ना ये देखोगे ना, the flow chart, the diagram which we had made during the first lecture, तो तुमने देखा रहेगा कि रिटेल ट्रेड को इन लोग ने फर्दर क्लासिफाई किया, एंड दैट फर्दर क्लासिफिकेशन हैज बीन इनटू 2 मेजर सब टॉपिक्स, दैट इज आइटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इफ यू आर नॉट एबल टू, आई मीन ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी एबल टू सी, क्योंकि बनाया तो सब लोग नहीं था, बट आल्सो मैं क्या बोल रहा हूं, यू सी दिस पार्ट, retail trade, and now the classification. And when I say about the classification has been into 2 major things.
अच्छा, जब तुम लोग ने खाली इतना लिखा था, इतना ही लिखा था, यू नेवर रोट एनीथिंग अबाउट what is itinerant and fixed shop. Maybe fixed shop by the name itself, it is kind of very clear for us to understand what is fixed shop retailers. We may not know, or you may guys not know what is itinerant retailers. So I'll have to tell you about what are itinerant retailers. So itinerant retailers are those retailers who do not have a fixed place of business. उनके पास है ना एक फिक्स कॉन्क्रीट प्लेस नहीं होता धंधा बिजनेस करने का. They move from one place to another place. एक से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं in search of customers and trying to provide them with the goods. They may not want to provide services obviously, but हाँ, इन लोग ज्यादातर तो गुड्स वगैरह बेचते हैं. They carry the goods with themselves only. खुद के साथ ही उन लोग गुड्स वगैरह लेके चलते हैं. So जहां कहीं पे भी लगा कि हाँ चलो यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, उन लोग उनको गुड्स दे देते हैं. Maybe they may be stagnated at one place for a particular period of time, but you may not have them at a concrete place. आज है शायद कल नहीं है, कल है maybe परसों नहीं है. So these guys are, that is why called as what? These are guys are, that is why called as itinerant retailers. On the other hand, we have fixed shop retailers, means they have a fixed shop. They have a fixed place of business. So we as customers, we have to go to them. अब वो सामने आदर्श बेकरी इधर से रोज दिखता है मेरे को. तो आदर्श बेकरी सामने ही नहीं. If I'm even thinking of having some kind of a bakery product or a cake or something, I'll have to go to them. He is not going to come to me. Yes or no? ये मैग्नेट वाला है, मोबाइल वाला, वो उधर ही है, बहुत साल से उधर ही है. They are fixed. They have made their place fixed. We as customers, we go to them. And this includes everyone. This includes maybe a mall also, or maybe a departmental or a supermarket also. They have a fixed place of business. We as customers, we go to them. Itinerant, they try to come to very near to us. I mean, they try to come very near to us. समझा कि नहीं समझा? All of you. Right? So see, I'll share the meaning part. Itinerant retailers. Oh, दिख रहा है? Everyone, लिख दो मीनिंग पार्ट. किसको नहीं निकला पच करना, निकलो घर पे. बेटा मेरे लिए नहीं है, एग्जाम्स आर डन. दिस इज 2 मार्क का एक्सप्लेनेशन. अगर एग्जाम में एक्सप्लेन द कंसेप्ट है 2 मार्क के लिए, दिस इज द प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन दैट यू गिव. आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज टेक्स्ट बुक में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आइटिनरेंट का. ये मैंने ऐसे ही बनाया और इसके लिए आपको मैं दे रहा हूं. उन लोग एग्जाम में पूछते हैं, एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं आइटिनरेंट का. ओके, फटाफट. हुआ? पहले वाले में सबसे लेट था, इसमें तू फटाफट लिख लिया.
वो टाइम पास कर रहा था ना. पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी. खुद का लेके आना भाई, खुद का पेन लेके आना बे. अच्छा खाली हो गया. कभी कभी नीचे से उठाते हैं, ऐसे ही होता है, खाली मिलता है. डन ऑल ऑफ यू. चलो अभी इसमें देखोगे ना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आइटिनरी रिटेलर्स. कितने? सबसे पहले वाले का नाम क्या मालूम है? सबसे पहले वाले का नाम है, ही इज कॉल्ड एज हॉकर. या दे आर कॉल्ड एज हॉकर्स. कैन एनीवन आइडेंटिफाई एन हॉकर? लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई हॉकर्स? सॉरी, ये लोग सब स्ट्रीट पे होते हैं, घर पे कोई नहीं बैठा है. तो ना ना, अभी तू क्या अलग आर्गुमेंट है तेरा? स्ट्रीट पे जो कुछ लगा के बैठते हैं, क्या मेकअप? सामान जोड़. हाउ डू आइडेंटिफाई देम? कहा ये भाई ये हॉकर है. बिकॉज सी देयर आर 5 ऑफ देम. ओके, सो उसमें भी स्पेसिफिकली व्हेन समवन इज कॉल्ड एज एन हॉकर, हाउ डू आइडेंटिफाई हिम? चिल्लाते हैं वो, तो मम्मी भी चिल्लाती है. So if you now want to identify hawkers, so they are those retailers who will place their goods in a hand cart made of wood. लकड़े का मतलब हाथ गाड़ी बोलते हैं ना अपन, with 4 wheels. घूमते रहते एक से दूसरा स्ट्रीट, दूसरे से तीसरा स्ट्रीट. एंड या दैट इज क्वाइट फेयर व्हेन यू सेड कि सर ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं. Yes or no? Of what they are wanting to sell? Yes or no? With the price and the quantity? Whatever. Better left to them. See, I have a very classic example. Whenever I come across an hawker, ना मेरे दिमाग में ये आता ही example. Legendary character था. Yes or no? भाई मैंने जिंदगी में पहली बार कोई हॉकर देखा था तो जो टाई सूट में था. देखा कि नहीं? मूवी देखा कि नहीं? लेजेंडरी कैरेक्टर, लेजेंडरी डायलॉग. हॉकर, हाथ गाड़ी, wanting to sell their part of goods, displaying it on the hand cart, moving from one place to another place. Yes or no? Everyone. आगे ना, क्या कौन सी चीजें बेचते हैं? Fruits, vegetables. I've even seen them selling flower pots, and I mean they have the small nursery to carry with themselves. एक और example है, not a healthy one, but you can't even write it. But I'll give you an example. मालूम है, गोले वाला रहता है, ट्रिंग ट्रिंग बजा के घूमते रहते हैं हर जगह पे, घंटी विंटी बजा के घूमते हैं. डोंट राइट दोज एग्जांपल्स, नॉट हेल्दी एज सच. और लिखोगे भी क्या? गोले वाला. नो सर, आइस कैंडी लिखना. सामने वाले प्रोफेसर को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आएगा तो भाई तुम्हारा प्लस. और पॉपकॉर्न वाला भी होता है, बट ही डज नॉट हैव अ कार्ड, ही हैज हिज ओन ट्रॉली टू टेक. बट या यू कैन राइट पॉपकॉर्न. ठीक है, सेमी हेल्दी प्रोडक्ट. सॉरी, हाँ वो सब तो है, मतलब इमिटेशन वाली बहुत सारी चीजें होती है, बैंगल्स एंड हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स एंड आई डोंट नो व्हाट ऑट, बहुत सारी चीजें होती है. एग्जांपल एक या दो ही लिखना है. पॉइंट ये है कि समझना है कि कौन होते हैं हॉकर्स, हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम. आई होप यू आइडेंटिफाइड देम. यस और नो? द सेकंड आर कॉल्ड एज, अच्छा, hawkers are one of the older retailers. They are one of them. I'm not saying they are the oldest. They are one of them, and they also kind of give you a good convenience. Why? Because they can come very close to your building or your gate. Like building के नीचे तक आ जाते, they shout, and you know many a times I've seen people rushing down. अब जो next वाला है ना, उसमें एक और example है जहां पे मैंने देखा है कि yes, there is an hawker who's come to a building or a society and people have come and bought goods from that person. But let us now go to the next one and then I'll share the example as well, जो है hawker का बनता है ज्यादातर. So the next one are called as peddlers. क्या बोलते हैं अपन उसको? How do you identify peddlers from hawkers? Like hawkers तो समझ के हाथ गाड़ी लेके घूमते हैं. Peddlers, they carry goods on their head in a basket or something. मच्छी मालूम था, कौन है बोला? श्रावण खत्म हुआ, रावण जाग गया. तू वेज है, तू वेज एग्जाम्पल देना. बैठे बैठे मछलियों को मार दिए. अच्छा, मतलब यू आर वेज इन फ्रंट ऑफ फैमिली. मच्छी. एनीवेज, देखो राइट वाला एग्जांपल दिख रहा है. कौन सा एग्जांपल है वो? अरे राइट वाला एग्जांपल.
उसमें है ना एक बंदी आती है, आई डोंट नो, ये बहुत एंशिएंट टाइम्स का एग्जांपल है, पर उसमें एक बंदी थी ना जो आती थी और बिल्डिंग वाले सब लेडीज लोग जाके खरीदते थे. शी वॉज अगेन एन हॉकर. ओके. हाँ, पेडलर्स जैसे मैंने बताया, दे विल डू व्हाट, दे विल कैरी गुड्स ऑन देयर हेड्स. जैसे फिश इज एन गुड एग्जांपल. और अगर अपन अपने लेवल पे एग्जांपल की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट वेजिटेरियन एग्जांपल्स. भेलपुरी वाला तो किधर लेके जाते हैं? देखा नहीं कभी तूने सर पे लेते हुए? क्या यार. हाँ वही वही बेल, सेव, चना, सिंग, व्हाटएवर. भाई एक बार मैंने पेपर चेक किया था. आई मार्क दैट पेपर, स्टार मार्क किया, तो मैंने पूछना था भाई एग्जांपल लिखा, एक बंदे ने लिखा था. उसने क्या लिखा था मालूम? पान वाला. नहीं नहीं सर, हमारे गांव में एक होता है बंदा जो ऐसा पेट के ऊपर ऐसा एक छोटा ऐसा कुछ लेके घूमता. तेरा ही भाई तो नहीं था? हाँ, उसने भाई मेरे को गूगल पे फोटो बताया. सर देखो, अभी सर पे नहीं और पेट पे क्या ही फर्क पड़ता है. बात तो सही है तेरा. एंड हाँ, वो ऐसा रखता है, फिर ओपन करता है, ऊपर एक लाल कलर का गमछा रहता है, वो निकालता है. तो हमारे गांव में ऐसे ही चलता है. मतलब इधर फालतू में पान वाले ऐसे दुकान लेके बैठे. देखो ये सब अपन एग्जांपल ले रहे, मजे इनको लेने हैं. बट एग्जांपल अगेन वी कैन टेक पान वाला, बट यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ फिश, healthy. You can take examples of, you know what, people carrying fruits and vegetables in a basket on their head. You can take that example. You can even take an example where you have seen some ladies carrying vessels and utensils on their head. Please example में पापा है ना. अरे लेजेंडरी होते यार उन लोग भी, बहुत मजा आता है उनके पास. भाई देखो, टेस्ट 100 on 100, फीलिंग 200 on 100. अगर तुम थोड़ा भी हेल्थ कॉन्शियस हो, डोंट इवन ट्राई. अरे सब हो सकता है, पर तूने खाया कभी? इसके लिए कभी खा. हाँ भाई, हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग नहीं खाना इधर, हमारे जैसे लोग खाते हैं. लेजेंड होते हैं उन लोग, लेजेंड. ठीक है नहीं? आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेके घूमते हैं, कुल्फी वुल्फी टाइप्स सर पे. सब घटिया वाले एग्जांपल में हाँ है इसके. पान वाले में हाँ, आइसक्रीम वाले में हाँ, जब बोला फ्रूट्स वेजिटेबल्स हाँ. Yes or no? I can give you a couple of examples, but talking about them, they give the maximum convenience. क्यों मालूम है? बिल्डिंग के घर नहीं, घर तक आ जाते हैं. लेकिन directly I've seen in so many societies, those guys come literally to your doorstep, घंटी बजाते, लेते, रखते और लेके जाओ. राइट? एक और क्या, रुक जा बे. अगर अपन ओल्डेस्ट की बात करें तो जैसे हॉकर्स का मैंने क्या बोला था, वन ऑफ द ओल्डर वंस, दीज गाइज आर द ओल्डेस्ट वंस. लोग सबसे जूने हैं as far as their existence is concerned. I mean, the existence of every retailer is concerned. बरोबर? पक्का? Everyone? चलो next. क्या बेल बना रहा है मस्त जू बीच पे? Yes or no? Third is street traders. चलो street traders पढ़ते हैं. दिख रहा है? ये मैंने लाइव फोटो निकाला है. And exactly CSC के बाहर ही है वो. Some years back मेरे को पता था ऐसा कोई एग्जांपल देना पड़ेगा तो I'll click a photograph. तुम देख रहे हो लाइन में क्या क्या चीजें लेके बैठे. अभी मेरे को समझ में कस्टमर है कि सेलर है. मैंने तो फोटो निकाल लिया. देखो बैग्स, ठीक है, इधर भी बैग्स. These are glares, हाँ, these are glares. वो चीप वाले ग्लेज आते हैं ना, 200 राइट. इधर है ना अम्ब्रेलास थी. Seen them selling that. I am not saying they are selling branded products. Obviously, they are not going to sell branded products. इधर एक बंदा वापिस बैग्स लेके बैठा था. उसके बाद you seen them selling ये मोबाइल कवर्स. अच्छा, थोड़ा और आगे तुम भले नहीं दिख रहा है, ओके, कोई लोग कपड़ा लेके बेचते हैं. ऐसा they have kept the heaps of, I mean heap of clothes. उठाओ जो भी चाहिए, 60 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, whatever. I even था उसमें भी, आगे तक नहीं मैंने फोटो निकाला. They are even selling those cheap headphones, चार्जर्स, वॉचेस. ओ भाई कितना पावर होता है उसमें नहीं मालूम मेरे को, बट या समटाइम्स आई इवन सीन देम सेलिंग गिफ्ट आर्टिकल्स.
लाइक मैंने एक देखा था इलेक्ट्रिक वाला ऐसा जो फ्लावर पॉट जैसा एकदम लाइट वाला ऐसा, आई डोंट नो, सी दीस आर स्पेसिफिक थिंग्स व्हाट दे आर सेलिंग. अब इनका क्या मालूम है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम? दे विल सी एन एम्प्टी स्पेस ऑन एन ओपन रोड, इधर जगह देखी बैठ जाते हैं शाम को किधर, और इनका कॉन्फिडेंस पे हैट्स ऑफ है इनको. मेरे को बोलते हैं, मतलब देखा है हमने, सर लेगेगा कुछ रहेगा तो बाद में देखे जाना. तू कहां पे रहने वाला है? हम तो इधर ही है. किधर? अच्छा, हाउ दे आर ना, कभी कभी मैंने इनको भी देखा है ना, कभी वो बुलक कार्ट वगैरह पे आते हैं और उन लोग वो तरबूज बेचते हैं, मालूम है ऐसा. सो मॉर्निंग टाइम में व्हेन द होल क्राउड इज गोइंग दिस वेज, तो दे विल बी फेसिंग दिस वेज, ताकि तुम पीछे से देखो कि अंदर तरबूज है. यही बंदा शाम को ऑपोजिट साइड चले जाता है, देन फेसिंग दिस वेज, बिकॉज पीपल आर कमिंग दिस वेज. स्टेशन जाते, स्टेशन आते, एंड जाने के टाइम फिर भी लोग नहीं लेके जाएंगे इतना सामान, लेकिन आने के टाइम पब्लिक देन बाय. यस और नो? ऐसा है, दे विल चेंज देयर प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्राउड. जहां पे उनको लगा फुटफॉल ज्यादा है लोगों का, खड़े रह जाते हैं. एंड दे विल वांट टू डिस्प्ले. ये देखो क्या डिस्प्ले किया. एंड इन लोग का कैसा मालूम है, बीएमसी वालों से फटती है भाई. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना इनका पूरा सामान ऐसा निकल जाते हैं एकदम फास्ट. अच्छा, एक और मैंने देखा है, दे सेल बुक्स, नॉवेल्स एंड बुक्स. इसमें नहीं था, बट आई कैन इमेजिन, मैंने देखा है उनको बेचते हुए. समझा? हेडफोन्स बहुत टाइम देखा है, चप्पल भी देखा है मैंने, वो फालतू वाली चप्पल, सैंडल, स्लीपर्स सब आ गया ना उसमें बेटा. जीन्स, मतलब क्लॉथ में सब आ गया. मैंने शर्ट, टी शर्ट, टॉप्स देखे हैं, जीन्स मैंने नहीं देखा अभी तक. मे बी हाँ, इमिटेशन तो हाँ, वो तो ऑब्वियस, बैंगल वैंगल लेके बैठ दे, क्लिप विप वो सब तो हाँ. अच्छा, एक और अगेन यूजिंग माय पावर ऑफ इमेजिनेशन, सॉफ्ट टॉयज, वो छोटे मोटे टेडी बेयर, खिलौने, टिंग 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 बच्चे रहता है, वो सब. छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं ना, मम्मी, राइट? नहीं, कभी लिया बेटा? ले कभी लेना, ठीक है. श्योर, अंडरस्टूड देम. ओके, नेक्स्ट इज चीप जैक्स. क्या नाम है? अब तुमको समझ में नहीं आ रहा कि बंदा गुस्से में क्यों है. फर्स्ट आई टेल यू, I'll explain who are cheap jacks. Then you tell me where have you seen them. So what do cheap jacks do? You know, they will hire a temporary place to sell their products. And hire a temporary place means they'll hire, genuinely they'll hire it. Maybe for a couple of days, maybe a weekend, or maybe a few days. And once done. अब मेरे को बताओ, तुमने सबसे ज्यादा चीप जैक्स कहां पे देखे? तो बस एग्जांपल है, दिख रहा है उसके हाथ में रॉकेट है, साले हाथ में लगा के उड़ा दूंगा तेरे को. मेला तो नहीं बोलूंगा, फटाके दिवाली में फूटते ना बे, होली के टाइम पे तो नहीं फूटेंगे ना. कौन बोला? गवारों के मजदूर. एनीवन बोल. गणपति का जहां पे उन लोग बना के बेचे टेम्पररी, बट वो तो फिर भी एक्सटेंडेड देते, 2 महीना होता है. इतना मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है. यू कैन कॉल देम एज चीप जैक्स, बट आई वोंट कॉल देम एज चीप जैक्स, बिकॉज ये सारी चीजें चीप नहीं होती. क्योंकि चीप जैक्स में चीजें एकदम क्लियर है, दे आर चीप इन प्राइस, चीप इन क्वालिटी. वो एकदम एविडेंटली बोलता है, भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना कोई क्वालिटी और स्टैंडर्ड का, प्लीज. आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग व्हिच इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड क्वालिटी. सॉरी, बाजार में तो नहीं. मैं बोल रहा हूं थोड़ा यूज करो दिमाग के. उन लोग है ना, कोई जगह हायर करते फॉर अ टेम्पररी पीरियड, एक टेम्पररी टाइम के लिए. मेले वाला मैं I'll get back to you, वो एग्जांपल नहीं होगा फिलहाल, मैं बताता हूं क्यों. मेला छोड़, अगर तू मेरे को एग्जीबिशन बोलती ना, विच इज नॉट अ मेला एक्चुअली. एग्जीबिशन समझता है, नुमाइश. एग्जीबिशन में कैसा होता है, 2 या 3 दिन का एग्जीबिशन होता है और उन लोग स्टॉल्स लगाते हैं टेम्पररी टाइम के लिए. एग्जीबिशन खत्म, इन लोग भी खत्म. जाने दो, आई गिव यू अ बेटर एग्जांपल व्हिच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फील इट बेटर. गणपति का जहां पे पंडल होता है, उसके आजू बाजू देखोगे कोई खाने पीने का स्टॉल लेके बैठा है, कोई खिलौने के स्टॉल लेके बैठा है. कितने दिन रहेंगे? जब तक गणपति रहेगा. और डीप में, जहां पे तुम अगेन वेरी पर्सनली अंडरस्टैंड कर सकते हो, नवरात्रि का जहां पे ये होता है, उसके अंदर स्टॉल्स लगाते हैं. देखा, लग गए लोगों की, मतलब पानी का स्टॉल, खाने पीने का स्टॉल, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल. दे हायर दैट प्लेस फॉर 9 days. 10वां दिन वही खत्म, ये भी खत्म. बरोबर है कि नहीं? हाँ या ना? एक और लास्ट एग्जांपल दे सकता हूं, जो अभी तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन इस साल से करोगे. कौन सा? जब तुम्हारे कॉलेज में डेज होते हैं, फेस्ट में स्टॉल्स लगाते हैं ना लोग, राइट? अभी एग्जांपल बैठता है दिवाली के टाइम पे,
लगाया था मूवी में, उन लोग ने स्टॉल लगाया था ये वो करके, भले बाद में क्या हुआ था भगवान को मालूम, राइट? अच्छा, इन लोग क्या बेचते हैं? कटलरीज एंड क्रॉकरीज एंड व्हाटएवर, खाने पीने की चीजें, पानी वानी, ये सब बेचते हैं इन लोग, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट आर मार्केट ट्रेडर्स. नाउ जेन्युइनली दे आर मच बेटर देन द अदर्स. अब वो मैडम, तूने क्या बोला था? मेला थोड़ा अलग हो जाता है, मार्केट ट्रेडर्स में बैठता है वो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगेन वी मे नॉट हैव एक्सपीरियंस, सम ऑफ यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड. मार्केट ट्रेडर्स क्या करते हैं मालूम है? सिटीज में कम है, ठीक है? रूरल एरियाज में ना, दे डोंट हैव अ परमानेंट मार्केट, बट वहां पे क्या होता है मालूम है? मार्केट डेज होते हैं. हाँ, वही होता है ना, बुधवारी मार्केट, सोमवारी मार्केट, शनिवारी मार्केट होती है ना, आठवड्याची मार्केट तुम मराठी में बोलो तो. क्या करते? 2-3 गांव के बीच में एक ओपन स्पेस रहेगा. उस ओपन स्पेस में उस पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक में मेला लगता है. Everyone comes, they display their goods, they take up a stall, they hire a stall and they sell. Maybe they may not hire a stall, but they would be given a space जहाँ पे इन लोग सब बेचते हैं. एंड वो 3-4 गांव के लोग मिलके उधर आते हैं, उनके लिए तो लिटरली वो एक दिन है ना, लिटरली संडे जैसा या फंडे जैसा होता है. बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे विल वांट टू बाय द थिंग्स फॉर द होल वीक और मे बी फॉर अ फोर्टनाइट. क्वालिटी एंड चीजों के हिसाब से इनके पास वेराइटी और इनकी क्वालिटी, लोगों की जो चीजें बेचते हैं इन लोग की बेटर होती है, लाइक कपड़े, ड्रेस एंड एवरीथिंग, मसाले, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल, ड्राइड फिशेस एंड ऑल दोस थिंग्स. जो गांव में ये सारी चीजों का डिमांड होता है, एंड दे आर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स. अचार वगैरह ये लोग बेचते हैं. अच्छा, मैं भी 1-2 बार गया हूं, बाद में मेरे लिए तो ऑब्वियसली दिस शॉपिंग वाज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी वाज ये, इसमें फिर मेले में मालूम है गेम्स वेम्स लगते हैं, रिंग फेंको, ये वो सब टाइम पास होता है. दे हैव दोस जायंट व्हील एंड ऑल दोस ट्रैम्पोलिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सब इधर होता है. बात क्या है? समझो एक गांव का एक पर्टिकुलर डे इज मंडे, थोड़े दूर एक दूसरे गांव का डे इज वेडनेसडे, थोड़े दूर का गांव किसी का फ्राइडे. तो ये जो मार्केट ट्रेडर होगा, मंडे को इस गांव में रहेगा, वेडनेसडे को उस गांव में रहेगा, फ्राइडे को उस गांव में रहेगा. अगेन दे डोंट हैव अ फिक्स प्लेस. बट कंपेयर टू द अबव फोर, दीज गाइज आर सेलिंग मच बेटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनके पास अच्छी चीजें होती है. आई एम नॉट सेइंग दे सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, नाइकी का कोई शोरूम नहीं लगाएगा उधर, बट दे हैव मच डिसेंट प्रोडक्ट्स कंपेयर टू द अबव फोर. समझा? ऑल द 5 guys, this answer is an important 4 या 5 मार्क आंसर इन योर एग्जाम. कुछ नहीं आंसर में, बट दे आस्क, पता नहीं उनको एक फेवरेट आंसर लगता है उनका, 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. यस और नो? आई गिव यू अ मिनट, फटाफट देख लो फास्ट, क्विक. क्या फर्क पड़ रहा है? गर्ल्स रिलैक्स फास्ट. ये जो फोटो है ना, ये देखो ना, वर्ली का फार्मर्स मार्केट है ये. वर्ली में अगेन उन लोग एक स्पेस जहाँ पे फार्मर्स डायरेक्टली कम देयर एंड सेल द प्रोडक्ट. सो पीपल काइंड ऑफ दे फील दैट दे आर बाइंग एनीथिंग व्हिच इज ऑर्गेनिक, एंड द प्राइसेस आर कंपैरेटिवली वेरी लेस बिकॉज यू डोंट हैव द इंटरमीडिएरीज हियर. समझा? तो डायरेक्टली उन लोग मार्केट से ही बेचते हैं, फिर मार्केट पे आके बेचते हैं. फास्ट.
Fast. Done? All of you? So we have completed the itinerant part of retailers. Now, the next session we are going to continue with what? We are going to continue with the fixed shop retailers. Okay? वो भी दो में divided है and everything else I'll explain you in the next session. For your homework, guys, ये वाला आंसर लिख लेना. It's one of your favorite answers for every college. 4 या 5 मार्क आपका फ्री हो जाएगा. Clear? All of you. Right? चलो, I'll see you in the next session.